Welcome friends in today's session related with residential status of an SSC. It's a very short sum, just a 3-line sum, but its calculation is there. Calculation is also very simple as per the information given in the sum. This sum, friends, it was asked in Veer Narma, South Gujarat University in the year April 2017, and we are going to calculate this sum today, sum number 6. Let's have its detail first. Mr. George, who is an Italian citizen, comes to India for the first time after 25 years on 12th April 2019 and stays up to 26th November 2019. We are just required to decide, means determine his residential status for the assessment year 2020-21. If your assessment year is 2021, what will be your previous year, sir? Before 1 year, means your previous year is 19 and 20, 2019, 2020. Now friends, this duration is given to you. He has directly come after 25 years. 25 साल इटाली में रह के वो भारत आ रहा है, मिस्टर जॉर्ज, यानी भारत में पहली बार आ रहा है, यूं समझ लीजिए। और कब आया सर? 12th April 2019 he arrived and he departed on 26th November 2019. हमारे पास सिर्फ एक साल का डेटा है, प्रीवियस ईयर 1920 का डेटा है। उसके बेसिस पे आपने क्या कैलकुलेट करना है सर? वेदर ही इज ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट, और he may be an NRI, means non-resident in India. So let's have the valuation of residential status of Mr. George. So let us frame the statement. Give the heading residential status of Mr. George and prepare 3 columns and give the headings under the column: conditions, computation, satisfied or not. Like this you are supposed to frame the columns. First of all, friends, always in case of residential status, you are supposed to first identify whether he is resident or non-resident. For that, there are 2 basic conditions, and that we will apply to identify or to determine what exactly is the residential status of an SSC. So let us have the basic conditions related with resident. So basic conditions, or we can say conditions for resident. What is the first condition? Let's have the first condition in the condition section. He must have stayed for 182 days or more in the previous year 2019-20. Now we are not having exact number of days in this particular sum, so we are supposed to have its calculation. हमें exactly नहीं पता है वो कितने दिन का stay किया उसने साल 19-20 में, तो हमें उसका valuation करना पड़ेगा। 12th April 2019 से वो आए थे और कब तक स्टे किया सर? 26 नवंबर। तो ये डेटा का उपयोग करके हम वैल्यूएशन करेंगे। चलिए तो वैल्यूएशन देख लेते हैं कितना हो रहा है, क्या हो रहा है। हम बात करेंगे अप्रैल के मंथ की, तो अप्रैल का मंथ जो है यहाँ 12th अप्रैल को आया, तो 12 से लेकर 30 डेज होते हैं। 19 दिन हुए अप्रैल के। बाजू में मैं शॉर्ट में ए लिख रहा हूँ, ए मीन्स अप्रैल। 31 डेज मई के होते हैं, उसके बाद जून में 30 डेज होते हैं, ये बेसिक्स आपको पता ही होगा दोस्तों। जुलाई में 31 डेज होते हैं, अगस्त में 31 डेज होते हैं, सितंबर भी आएगा 30 डेज, अक्टूबर में 31 डेज, और 26 जो है नवंबर, यानी 26 डेज ऑफ नवंबर इंक्लूसिव हमें लेना होगा। तो इन सब का अगर हम एडिशन करते हैं दोस्तों, 19 + 31 50, फिर आप 30 + 31 31 30 31 26 ऐड करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा सर 229 डेज। इतने डेज का स्टे हुआ है 2019-20 में। तो हमने क्या कंडीशन में है, हमारे कंडीशन में क्या है सर? बेसिक कंडीशन में 182 डेज या उससे ज़्यादा का स्टे हो तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है सर। यहाँ हो रही है 229 डेज का स्टे है, तो पहला कंडीशन सेटिस्फाई होगा। हम लिखेंगे यस, यस द कंडीशन इज सेटिस्फाइड। अगली कंडीशन पे चलते हैं। दूसरी कंडीशन के अंदर बेसिकली 2 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। एक है 60 डेज वाली कंडीशन, तो उसको ध्यान में लेंगे। 60 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर 1920 एंड 365 डेज इन 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर 1920।
तो इसके अंदर दो कंडीशन है, दोनों एंड का मतलब प्लस है, दोनों सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो पहले हम प्रीवियस ईयर 1920 वाली कंडीशन देख लें। 60 डेज का स्टे सर अभी हमने कैलकुलेट किया, 1920 के साल में 229 डेज का स्टे है। तो पहली सेकंड की पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है सर। तो हम यहाँ लिखेंगे प्रीवियस ईयर 2019-20 का स्टे कितना है, 229 डेज। अब हमें 365 डेज का वैल्यूएशन देखना है पिछले 4 सालों में, 19-20 को छोड़ के उसके ऊपर के 4 सालों में और प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में 365 डेज का स्टे होना चाहिए। तो अब हम तो जानते हैं सर कि वो 25 साल बाद भारत में आया है, कोई दिक्कत नहीं है, भारत में आया तो कोई क्राइम नहीं हो गया दोस्तों। लेकिन 19-20 के साल में ही आया है सीधा, यानी उसके ऊपर के तो कोई डेटा है ही नहीं, मीन 0 डेज है, तो भारत में था ही नहीं। तो दूसरी कंडीशन पॉसिबल ही नहीं, यूँ समझ लीजिए, उसका वैल्यूएशन नामुमकिन जैसा है। ही स्टेड हम सिंपल लाइन में लिख देंगे, ही स्टेड फॉर 0 डेज इन 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस। हमारा सिंपल सी लाइन होगी, एक भी दिन वो ऊपर के 4 सालों में एक भी दिन भारत में आया ही नहीं। तो ये इसमें दोनों कंडीशन सेटिस्फाई, मीन्स एक यहाँ हो रही है 60 डेज वाली सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन दूसरी भी होनी चाहिए, 365 डेज वाली भी साथ साथ में टैली होनी चाहिए, सेटिस्फाई होनी चाहिए। यानी इसमें एक सेटिस्फाई हो रही है 60 डेज वाली, लेकिन 365 डेज वाली सेटिस्फाई नहीं। तो अगर ये सिचुएशन है तो यहाँ आंसर क्या आएगा, नो, मीन्स नॉट सेटिस्फाइड। ये दोनों सेटिस्फाई होनी चाहिए, 60 डेज वाली भी 365 डेज वाली भी, सेकंड में दोनों। और यहाँ यस आता, लेकिन एक हो रही एक नहीं हो रही, तो नो आएगा। मीन्स दो बेसिक कंडीशन में से एक बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तब हम जजमेंट देंगे इसके बेसिस पे। जजमेंट लिख लेते हैं। सो मिस्टर जॉर्ज has fulfilled one basic condition, so he will be treated as resident in India. दो में से अगर एक में भी यस आता है आंसर में, सेटिस्फाई होती है एक भी कंडीशन बेसिक कंडीशन, तो वहां पे वो रेसिडेंट इन इंडिया होगा। दोनों में यस होता है तो भी यही आंसर होगा, दोनों में नो होता है तो आंसर चेंज हो जाएगा, नॉन रेसिडेंट इन इंडिया हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब बेसिक कंडीशन में अगर एक में यस आता है और जजमेंट हमारा रेसिडेंट इन इंडिया आता है, तो हमें आगे और एडिशनल कैलकुलेशन करना पड़ता है। और वो एडिशनल कैलकुलेशन में हम ये डिसाइड करने की कोशिश करेंगे कि रेसिडेंट तो है, लेकिन कैसा रेसिडेंट है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। अब ये हमें डिसाइड करना पड़ेगा, सामान्य रहीश है या बिन सामान्य रहीश है, ये हम जजमेंट करेंगे। तो अब हम चलेंगे एडिशनल कंडीशन में रिलेटेड विद ऑर्डिनरी रेसिडेंट। अब हम एडिशनल कंडीशन के बेसिस पे आगे का वैल्यूएशन करेंगे। तो चलिए अब चलते हैं आगे, एडिशनल कंडीशन लेंगे। तो पहली एडिशनल कंडीशन क्या है वो लिखेंगे, ये आपको बाय हार्ट हो जानी चाहिए दोस्तों। ही मस्ट हैव स्टेड फॉर एटलीस्ट 2 years इन आउट ऑफ द 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। कम से कम 2 साल का स्टे होना चाहिए पिछले 10 सालों में, जिसमें आपने 1920 का डेटा ध्यान में नहीं लेना, 19-20 का डेटा आप ध्यान में लेंगे नहीं। इसमें तो क्या डेटा आप देखोगे सर, हमारे पास सिर्फ 19-20 का ही डेटा है और कोई डेटा है ही नहीं। तो ये कंडीशन तो वैसे भी सेटिस्फाई होने वाली नहीं है, ऊपर जो हमने लिखा था वही आएगा। ही स्टेट फॉर 0 days इन 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, यहाँ आएगा 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, ऊपर 4 था, 4 साल की डेटा मांगी थी इसलिए यहाँ 10 साल की डेटा मांगी। फॉर 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में एक भी दिन का स्टे नहीं है, 19-20 के ऊपर के 10 साल में वो भारत में कभी आया ही नहीं, तो नो। अगली एडिशनल कंडीशन देखेंगे जिसमें डेज आएंगे। स्टे होना चाहिए, कितना स्टे होना चाहिए, 730 डेज का स्टे होना चाहिए 7 सालों में प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। 19-20 के ऊपर के 7 सालों में कम से कम 730 दिन का स्टे, यानी तकरीबन 2 साल का स्टे होना चाहिए 7 सालों में। तो ये कंडीशन भी दोस्तों हम समझ गए हैं कि टैली नहीं होने वाला है, आसान है, बहुत ही आसान सम है ये। ही स्टेड फॉर 0 days इन 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। तो यहाँ 4 था, यहाँ 10 है, यहाँ 7 है, इसका आंसर भी नो आएगा। दोनों कंडीशन एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। तो यहाँ जजमेंट क्या होगा दोस्तों, चलिए जजमेंट लिख लेते हैं।
Answer is both the additional conditions are not satisfied. Mr. George is resident but not ordinary resident. इस तरीके से आपने जजमेंट करना है। रईस है लेकिन बिन सामान्य रईस है। अगर दोनों में यस होता तो मेरा जजमेंट क्या होता दोस्तों? रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, ये हमारा स्टेटमेंट ही हो जाता। एक में यस एक में नो होता तो मेरा आंसर यही रहता, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। इसमें याद रखना है दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ही रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट आता है। दो में से एक सेटिस्फाई हो रही है एक नहीं हो रही है तो यही आंसर होगा, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। दोनों में नो है तो जजमेंट आपके सामने।